Hello friends, to Radix. In this session we will discuss time, speed, distance, previous year question 51 to 100. Now, question number 51. A train 200 meter long running at 36 km per hour takes 55 seconds to cross a bridge, the length of the bridge. Let 200 plus L, L is the length of the bridge is equal, it takes 36. अच्छा, अब इसको कन्वर्ट करूंगा मैं मीटर पर सेकंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई किया into 55. This is 2 times. Now 550 200 plus L, so L would be 350. Okay, answer is C option. Okay, next question. A train 270 meter long is running at a speed of 36 km per hour, then it will cross a bridge of length. देखो 180 मीटर प्लस 270 मीटर अपॉन टाइम पूछा ना, तो अपॉन स्पीड कर देंगे 36 इंटू 5/18, क्योंकि देखो ये सब मीटर में दिया हुआ है. दिस इज 0.5 upon 10, so it will take 45 seconds to cross it. Answer is B option. Next question. A train 50 meter long passes a platform of length 100 meter in 10 seconds. Now 50 meter long passes a platform of length 100 meter in 10 seconds. So 50 plus 100 by 10, this is what speed in meter per second. So this is 15 meter per second. Answer is C option. Okay, next question. A train 180 meter long moving at the speed of 20 meter per second overtakes a man moving at a speed of 10 meter per second in the same direction. तो देखो यार, speed of train is 20, speed of person is 10, so relative speed is 20 minus 10 or 10 meter per second. The train passes the man in. अच्छा, now time taken to cross man is length of train 180 upon 10. It will cross him in 18 seconds. Okay, next question. A train 100 meter long is running at the speed of 30 km per hour. The time in second it will pass a man standing near the railway line. Now, time is distance of length of train upon speed of train. अच्छा, अब ये मीटर पर सेकेंड उसको 5/18 कर लो, जिससे हमारा ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए इसमें. सो दिस इज 0 कैंसिल 3 6 जा 60/5 or 12 seconds. Answer is C option. Okay, next question. How many seconds will a 500 meter long train take to cross a man walking with a speed of 3 km per hour in the direction of the moving train if the speed of the train is 63? तो देखो यार, 500 मीटर तो हो गई लेंथ ऑफ ट्रेन. नाउ द पर्सन इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन जिधर की ट्रेन मूव कर रही है, तो 63 minus 3 और इंटू 5/18. तो दिस इज 500 into 18 upon 60 into 5. This is 3 10 30. It will take 30 seconds to cross. Answer of this question is B option. Next, a train is 125 meter long. If the train takes 30 seconds to cross a tree by the railway line, then the speed of the train. A train is 125 meter long. So length of train is 125. If the train takes 30 seconds to cross a tree by the railway line, then the speed of, देखो speed of train length 120 and its time 30. 5 6 जा 525 जा. Now आंसर हमारा किलोमीटर पर आ रहा है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा 18/5 से, तो 6 3 जा 5 5 जा 15 किलोमीटर पर आवर. आंसर इज बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A 120 meter long train takes 10 seconds to cross a man standing on platform. Okay, a 120 meter long train takes 10 seconds to cross a man standing on platform. What is the speed? सिंपल सी बात थी, speed is equal length of train upon 10 seconds, तो 12 मीटर पर सेकेंड. आंसर इज ए ऑप्शन. बहुत आसान क्वेश्चन था. नेक्स्ट, a 75 meter long train is moving at a 20 km per hour. It will cross a man. So देखो time taken would be length of train upon 20 into 18/5, बिकॉज हमको जो कैलकुलेशन करनी है वो रिक्वायर्ड है, सॉरी ये 5/18 होगा, मिलीमीटर पर सेकेंड में करना ना कन्वर्ट. 75 into 18/20 into 5. ओके, अब एक बात समझ लो आप, इसमें आंसर 9 का मल्टीपल होगा. ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. आंसर इज ओनली सी. अब आप सॉल्व करना आंसर आ जाएगा, बट दिस इज द मेथड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. In what time will a 100 meter long train cross an electric pole if its speed is 144 km per hour? Now time is equal 100 meter upon 144 into 5/18. तो 18 ऊपर आ गया, 9 2 जा 9 16 जा 5 20 जा
2 8 जा, so it is 2.5 second. Answer is A option. Okay, observe that a 120-meter long train crossed him in 9 seconds. The speed, the speed of train is 120 by 9, but this is in meter per second, and we have to calculate in kilometer per hour. तो 18 by 5 से multiply कर दो. 9 2 जा 524, 48 kilometer per hour. Answer is C option. Next question. If a train with a speed 60 km per hour crosses a pole in 30 seconds, the length of the train. Now, length is equal speed into time. Speed is 60 और convert कर लो इसको आप. So ये हो जाएगा 5 by 18 into time है 30 सेकेंड. So 6 10 जा 6 3 जा 3 10 जा, तो 500 मीटर. आंसर इज डी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A train passes two person walking in the same direction at a speed of 3 km per hour and 5 km per hour in 10 second and 11 second. The speed of the train. अच्छा, इसमें कांस्टेंट क्या है? लेंथ ऑफ द ट्रेन. नाउ लेंथ, क्योंकि देखो ट्रेन की लेंथ भाई पर्सन की लेंथ तो कुछ होगी नहीं. लेंथ ऑफ ट्रेन वुड बी, अच्छा, और लेंथ होता है स्पीड इनटू टाइम. नाउ लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x minus 3 into 10 is equal x minus 5 into 11. सो दिस इज, अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मेरा किलोमीटर पर आ रहा है, ये भी किलोमीटर पर आ रहा है, ये सेकंड में, ये भी सेकंड में आ जाएगा. सो दिस इज 10x minus 30 is equal 11x minus 55. सो x would be 25. आंसर इज C option. नेक्स्ट क्वेश्चन. A passenger train 150 meter long is traveling with a speed of 36 km per hour. Okay. If a man is cycling in the direction of train at 9 km per hour, the time taken by train. Okay, तो देखो in that, if a man is cycling in the direction of train, तो relative speed होगी इनकी 36 minus 9 which is 27. अच्छा, ये तो होगी किलोमीटर. इसको 5 by 18 कर लेते हैं. ठीक है, कितना हो जाएगा? 9 3 जा 9 2 जा, तो 15 by 2. Now time taken to cross is 150 upon 15 by 2 or 20 second. Answer is D option. Bus start from a bus terminal with a speed of 20 km per hour at interval of 10 minutes. What is the speed of a man coming from the opposite direction towards the bus terminal if he meets the bus at an interval of 8 minutes? देखो यार, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर बस का निकलने का इंटरवल 10 मिनट का है और पर्सन का मिलने का इंटरवल 8 मिनट का, इसका मतलब अगर पर्सन अपने प्लेस पर रहता तो बस विल टेक 2 more minutes to reach that distance, which distance covered by the man in 8 minutes. So distance covered by man in 2 minutes, distance covered by man in 8 minutes would be speed of man. We have to calculate x into 8 is equal the same distance covered by bus in 20 minutes. So it is x would be 20 into 10 by 8. 4 2 जा 4 5 जा 2 5 जा 25. देखो यहां पर हमने क्या किया है सर, ये 2 होगा क्योंकि बस को तो 2 मिनट लगेंगे ना दूरी को कवर करने में. सो ये कितना हो गया? 5. आंसर इज सी ऑप्शन. देखो दोबारा समझ लो, अगर यहां से ये बस चलती है 10 बजे, बल्कि जो इसको मैं रब कर रहा हूं, आपने नोट कर लो, मैं ड्रॉप कर रहा हूं इसको. देखो ये 2 पोजीशन है, यहां से बस एवरी 10 मिनट पे निकलती है, यहां पर एक पर्सन खड़ा है, उसको बस मिलती है. अगर वो यही खड़ा रहता, ऐसे करते मान लेते 10 बजे एक बस निकली, यहां पर 10 बज के 12 मिनट पहुंची और यहां पर 10 बज के 20 मिनट पहुंची. अच्छा, कुछ देर में क्या हुआ, ये पर्सन अब नेक्स्ट बस यहां पर कब आएगी? 10 बज के 10 मिनट चलेगी, यहां पहुंचेगी 10 बज के 22 मिनट पर. मान लेते हैं ये 24 पे पहुंचे यहां पर. ठीक है, अब ये जब पहली बस इसको मिली तो ये इधर चला गया. इसका मतलब इसको फर्स्ट बस मिली 10:24 पर, नेक्स्ट मिली 10:22 पर, डिफरेंस ऑफ 8 मिनट. इसका मतलब अगर ये अपनी पोजीशन पे रहता तो इसको नेक्स्ट बस 10:34 पे मिलती. इसका मतलब केवल इतना सा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाई बस इन 2 मिनट इज कवर्ड बाई द पर्सन इन 8 मिनट. बस मैंने वही लॉजिक लिया है. मैन की स्पीड x, उसका टाइम 8, बस की स्पीड 20, इसका टाइम 2.
सॉल्व कर लिया, 8 हमारा 5 किलोमीटर पर आवर आ गया। और इनमें एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर ये किलोमीटर पर आवर तो ये भी किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, रेशियो है ना, और ये मिनट हो तो ये भी मिनट आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग पास्ड अ मैन walking along the line in the same direction at the rate of 3 km per hour in 33 seconds. The speed of the train is, देखो, a train 300 meter long passed a man walking along the line in the same direction at the rate of 3 km per hour in 33 seconds. The speed, देखो, मान लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन इज x और सेम डायरेक्शन में x माइनस 3, और क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर है, इसको 5/18 से मीटर पर सेकंड बनाओ, इज इक्वल 300 अपॉन 33। ठीक है, तो दिस इज x minus 3 is equal 300 into 18 upon 33 into 5, 60, 311 and 6. तो this is 360 upon 11। और अच्छा, अब x minus 3 हो गया, तो x यहां से x कितना होगा, 360 minus 33 by 11, और 7 to 327 upon 11, 11 2 जा, दिस इज प्लस, ये हो गया कितना, 3 9, तो 11 3 जा, और 30 बचेगा 63, 5 जा, 35। ओनली ऑप्शन पॉसिबल इज डी। ओके, देखो, क्योंकि अपॉन में 11 आना है और 35 वाला 32 आएगा नहीं, आंसर पॉसिबल इज ओनली डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A train 240 meter long crosses a man walking along the line in opposite direction at the rate of 3 km per hour in 10 seconds. The speed of the train. A train 240 meter long crosses a man. Okay, man में इसकी लेंथ नहीं आएगी, crosses in 10 seconds, तो स्पीड हो गई x माना ट्रेन की और -3। अच्छा, क्योंकि ये सब हमारा मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे 5/18 कर लो आप मीटर पर सेकंड बनाने के लिए। नाउ दिस इज 24 into 18 by 5 is equal x minus 3. This is 5 4 जा 5 8 जा। ओके, तो x इज इक्वल, अच्छा ये कितना हो जाएगा, तो दिस इज 86.4 और ये +3। अच्छा, यहां पर ये अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होगा, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आंसर इज 83.4। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पर मुझे 86 में 89 तो दिखा नहीं, इसका मतलब आंसर हमने कुछ गलती की होगी, आंसर इज सी ऑप्शन। अ ट्रेन इज रनिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर इफ इट क्रॉसेस पोल इन 25 सेकंड, इट्स लेंथ। ओके, देखो यार, बस सिंपल सी बात है कि लेंथ के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे स्पीड 36 इंटू 5/18, मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करना होगा 25, 18 2 जा 250 meter is the length of train. Answer is B option. A train is running at a speed of 90 km per hour if it crosses a signal in 10 second. Okay, ट्रेन चल रही है 90 किलोमीटर पर आवर से और ये 10 सेकंड में क्रॉस करते हैं, उसको 5/18 करो, दिस इज स्पीड इंटू 10, दिस इज लेंथ ऑफ द ट्रेन। 18 5 जा 5 5 जा 25, 250 इज द आंसर। आंसर इज डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन 100 मीटर long meets a man going in opposite direction at 5 km per hour and passes him 7 whole 1/5 second. What is that? देखो यार, let the speed of train be x and it crosses a man moving in opposite direction, और इसको मैं मीटर पर सेकंड बना लेता हूँ 5/18 से मल्टीप्लाई करके। Now it crosses ट्रेन 100 मीटर ट्रेन जो है, और इसको लगता है टाइम 36/5, राइट, तो ये 5 ऊपर आ जाएगा, दिस इज x प्लस 5, 5/18 इज इक्वल 100 इंटू 5 अपॉन 36, ये 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, 5 से 5 कैंसिल हुआ, दिस इज 50, x इज इक्वल 45। आंसर इज ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग टेक्स 6 सेकंड टू पास अ टेलीग्राफ पोस्ट। देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 120/6 और 20, ये तो हो गया मीटर पर सेकंड, इंटू 18/5 करो, 72 is the answer. Okay, next question. A train 300 meter long is running with a speed of 54 km per hour. In what time will it cross a telephone pole? So time is equal speed distance upon speed, which is 54 into 5/18. So this is 3 times and 300, 100/5, 20 second. Answer is A option. Between two cities A and B, देखो A और B के बीच में डिस्टेंस है 330 किलोमीटर।
A train start from A at 8 a.m. and travels toward B at 60 km per hour. 60 km per hour से चलता है. Another train start at 9 a.m. and travel towards A at 75 km per hour. अच्छा, इसका मतलब जब ये 1 hour लेट चलता है, इसका मतलब this will cover 60 km. So after this, the remaining distance is 270, and both are traveling towards each other at 9 a.m. with velocity 60 and 75. So their relative speed would be 60 plus 75, 135. Now time taken would be 270 upon 135 or 2 hours. Means after 9 they will meet at 11 a.m. Okay, next question. Two men are standing on opposite end of 1200 meter long bridge. If they walk towards each other, they at the rate of 5 meter per minute and 10 meter per minute, in how much time will they meet each other? Now 1200. देखो 1200 मीटर की लेंथ है और उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी है 15, तो ये टाइम जो आएगा मिनट में आ जाएगा 80 मिनट इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. टू ट्रेन्स, वन 160 मीटर एंड अदर 140 मीटर लॉन्ग आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स. ओके, देखो एक की लेंथ है 160 मीटर, दूसरे की लेंथ 140 मीटर है और ये अपोजिट डायरेक्शन चल रहा है. द फर्स्ट है 77 किलोमीटर ना, द अदर है, देखो इसकी स्पीड है 77 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 67 किलोमीटर पर आवर. ओके, इनका रिलेटिव स्पीड कितनी, इनको जोड़ दो 77 प्लस 67, दिस इज कितना जाएगा 144. और इसको आप 5/18 से सॉल्व कर लो. 9 2 जा 9 16 जा 2 8 जा, तो 40 मीटर पर सेकेंड. नाउ टाइम टेकन टू क्रॉस 160 plus 140 upon 40, so this is 300 upon 40 or 7 whole 1/2 second. Answer is B option. Next question. Two trains are running in opposite direction with the same speed if the length of each train is 120 meter and they cross each other in 12 seconds. Okay, तो देखो दोनों की सेम स्पीड है. टू ट्रेन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं, माना एक की स्पीड x है तो दूसरे की भी x होगी 2x, इज इक्वल 120 मीटर, दोनों की 120 है तो 120 अपॉन 12 सेकेंड, तो 20 सेकेंड, तो x वुड बी 10 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, अब 10 मीटर पर सेकेंड आ गया तो किलोमीटर पर आवर बढ़ाना है, तो 10 इंटू 18/5 और 36 किलोमीटर पर आवर. आंसर इज सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू ट्रेन्स 140 मीटर एंड 160 मीटर लॉन्ग रन एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हुई, अपोजिट है तो 100 किलोमीटर पर आवर या 100 इंटू 18/5/18 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, सो टाइम टेकन टू क्रॉस, इनकी लेंथ है 140 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5 इंटू 18, सो दिस इज 500 एंड दिस इज 300 इंटू 18, दिस इज 54/5 और 10.8. आंसर इज बी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Two trains start from station A and B and travel towards each other at the speed of 50 km per hour and 60 km per hour. Now, A और B से start करती हैं traveling towards each other with the velocity 50 and 60 km per hour. At the time of their meeting, the second train has traveled. देखो जब वो मिलेंगी, second train has traveled, माना ये चलती है x तो ये चलेगा x plus 120. Now, the important part is this. In this case, they start at the same time and meet. When they meet, the time is same. So in this case, S1 upon S2 is equal D1 upon D2. Speed of 1 is 60, speed of 2 is 50 is equal. Length covered by first is this and second is this. So this is 6x is equal 5x plus 600. So x would be 600. तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 600x plus x plus 120 हुई ना, तो 1200 plus 120 और 1320. आंसर इज सी ऑप्शन. Next question. Two trains are moving on two parallel tracks but in opposite direction. A person sitting in the train moving at the speed of 80 km per hour passes the second train in 18 seconds. Okay. दो trains हैं और पैरेलल ट्रैक पे चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में. A person sitting in the train moving at the speed of 80 km per hour. देखो जो इस ट्रेन में बैठा हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर से वो दूसरी ट्रेन को 18 सेकंड में पार करता है. तो देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, पर्सन की तो स्पीड आएगी, लेंथ नहीं आएगी, और यहां पर सेकेंड ट्रेन की लेंथ आएगी. तो टाइम टेकन टू क्रॉस इज इक्वल
स्पीड डिस्टेंस 1000 मीटर अपॉन स्पीड 80 इंटू, अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि हम इस स्पीड को यह काम करते हैं 80 प्लस एक्स, ये ऐसे ही छोड़ दो, 80 प्लस एक्स इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल 1000 बाई 18, ठीक है। तो ये 18 कैंसिल हो गया, 5 200, एक्स वुड बी 120 मीटर, 120 किलोमीटर पर आवर। आंसर इज बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two trains 105 meter and 90 meter long runs at the speed of 45 and 72 km per hour respectively in opposite direction on parallel tracks. The time which they take to cross each other is, देखो यार दोनों चल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई 45 प्लस 72 विच इज 5 to 7 and 7 117 नाउ इंटू 5/18। अब हमारा ये हो गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। 9 2 जा 9 1 जा 9 3 जा, तो 65/2 इज रिलेटिव स्पीड एंड वी नो दैट टाइम इज इक्वल डिस्टेंस विच इज 105 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 65/2, तो 2 पर आ जाएगा। दिस इज 591 अपॉन 65 इंटू 2, 13 1 जा 13 5 जा, या 65 से 3 टाइम जाएगा एग्जैक्टली है, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 सेकेंड। ओके ओके, को लेंथ रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन पास अ पोल इन 18 एंड 12 सेकंड, द ट्रेन्स विल क्रॉस इच अदर। देखो इसका एक शॉर्टकट होता है। नाउ इफ दे रन इक्वल लेंथ ट्रेन्स क्रॉसेस अ पोल और पर्सन in देखो first train crosses in t1 second and another train t2 second, so they will cross each other. नंबर 1, अगर चल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन तो बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, अपोजिट डायरेक्ट साइड चल रहे हैं, तो इन दिस केस दे विल पास 2t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2, and if they are moving same direction they will take 2t1 t2 upon t1 minus t2, ठीक है। so in this case ये फॉर्मूला नोट कर लो। now इक्वल लेंथ की ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन चल रही है, तो दे विल टेक 2t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। now 2t1 18 into 12 upon 18 plus 12, this is 2 into 18 into 12 upon 30, 6 5 जा 6 2 जा, तो दिस इज 18 इंटू 4 और 5 और 72/5 और इट इज 14.4। आंसर इज ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A train 150 meter long passes a pole in 15 seconds and another train of the same length is traveling in the opposite direction in 12 seconds. The speed of the second train. देखो हम इस क्वेश्चन को पहले की तरह कर सकते हैं। पहली बात तो 150 मीटर लॉन्ग passes a pole in 15 seconds, so its speed is 150/15 plus, okay, स्पीड मान लो सेकंड वाले की x because they are traveling opposite direction, तो 150/15 plus x, ये इसकी स्पीड हो गई, ये सेकंड की स्पीड, एंड दे क्रॉस, अच्छा सेम लेंथ है तो ये एक दूसरे क्रॉस करेंगे 300/12 सेकंड में, ठीक है। तो ये कितना हो गया 12 2 जा 12 5 जा 25 और ये हो गया कितना 10, तो x कितना हो गया 15 और इसको कन्वर्ट कर लो आप मीटर किलोमीटर पर आवर में, तो 18 3 जा 54। आंसर इज डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट। A train traveling at 48 km per hour crosses another train having half its length and traveling in opposite direction at 42 km per hour in 12 seconds. It also passes a railway platform in 45 seconds, the length of the railway platform. देखो क्वेश्चन में कह रहा है a train traveling at 48 km per hour crosses another train having half its length and traveling in opposite direction at 48 km per hour in 12 seconds. तो देखो मान लेते हैं length of this train is L, another train length L/2 is equal. Now speed of this train is 48 plus 42 and because this is in kilometer per hour, ये मैं मीटर ले रहा हूं, so we'll multiply this by 5/18 and in 12 सेकेंड, ठीक है। 6 3 जा 6 2 जा, नाउ ये हो गया कितना 90 इंटू 5 इंटू 2/3 और दिस इज 30
एंड दिस इज 3l/2, तो 3 से 10 हो गया। ये कितना हो गया 5 2 जा 10 10 100, तो l इज इक्वल 200। लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी आ गई 200 आ गई। अच्छा अब उसके बाद बोला हुआ है इट ऑल्सो पासेस रेलवे प्लेटफॉर्म इन 45 सेकेंड। अब यही जो ट्रेन है जिसकी लेंथ l थी विद स्पीड दिस लेट द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म बी x विद स्पीड 48 एंड 5/18 एंड 24 45 मिनट, ठीक है। 9 2 जा 9 5 जा एंड 2 24 जा, दिस इज 200 प्लस x इज इक्वल 600, तो प्लेटफॉर्म लेंथ वुड बी 400 मीटर। आंसर इज डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू टाउन्स ए एंड बी आर 500, देखो ए एंड बी आर टू टाउन्स 500 किलोमीटर अपार्ट। और ट्रेन स्टार्ट 8 AM फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी एट ए स्पीड, देखो 8 AM पर एक 70 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन चलती है और यहां से 10 AM पर एक ट्रेन चलती है टूवर्ड दिस विद वेलोसिटी 110। अच्छा, व्हेन दे विल मीट, अब होगा क्या, तो 70 से, क्योंकि ये चलिए 10 बजे, ये 8 o'clock, तो एट 2 hours इट विल कवर 140। तो अब होगा क्या, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 360, क्योंकि 140 वहां से कम हो चुका है एंड इट इज ट्रेवलिंग विद द वेलोसिटी 7 एंड इट इज 70 एंड इट इज 110। टाइम हो चुका है कितना, 10 बज चुका है। रिलेटिव स्पीड क्या होगी 180, टाइम टेकन वुड बी 360/180, 2 hours मींस 10 से 2 hours मतलब 12 noon। आंसर इज बी ऑप्शन। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। जब भी इस तरह क्वेश्चन आया तो आपको जो सेकंड ट्रेन चलती है उसके टाइम तक वो कितना डिस्टेंस करोगे वो निकालना होता है। टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 70 मीटर एंड 80 मीटर रनिंग एट स्पीड ऑफ 68 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली ऑन पैरेलल ट्रैक्स इन अपोजिट डायरेक्शन। इन हाउ मेनी सेकंड विल दे पास ईच अदर। ओके, टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ, ओके देखो 70 मीटर और 80 मीटर की स्पीड है 60 और रनिंग स्पीड है अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव स्पीड कितनी होगी 68 प्लस 40 कितना हो गया 108 और ये वो किलोमीटर, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके हम 9 12 जा 9 2 जा 6 30 मीटर पर सेकेंड। दिस इज स्पीड ऑफ दीज टू ट्रेन। नाउ टाइम टेकन टू क्रॉस इज 70 प्लस 80 अपॉन 30, 150 अपॉन 30 और 5 सेकेंड। आंसर इज सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two trains of equal length takes 10 seconds and 50 seconds respectively to cross a telegraph post. If the length of each train be 120 meter, in what time will they cross each other? देखो this part is not important because we have already discussed if they are traveling in opposite direction they will take to cross each other 2 T1 T2 upon T1 plus T2 is equal 2 into 10 into 15 upon 25, 5 2 जा 5 5 जा 5 3 जा और 12। आंसर इज सी ऑप्शन। तो लेंथ की कोई इंपॉर्टेंट डायरेक्ट करना है आपको, इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 137 मीटर एंड 163 मीटर आर रनिंग विद स्पीड ऑफ 42 एंड 48 किलोमीटर ऑन पैरेलल ट्रैक्स। इन हाउ मेनी सेकंड विल दे क्रॉस ईच अदर। देखो टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 137 मीटर एंड 163 मीटर आर रनिंग विद स्पीड ऑफ दिस टुवर्ड्स ईच अदर ऑन पैरेलल ट्रैक्स। अच्छा, इसमें ये वर्ड नहीं यूज हुआ है कि वो अपोजिट, तो मांगे चल रहे हैं अपोजिट चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी 42 प्लस 48, क्योंकि अगर सेम चलेंगे तो बहुत कम वैल्यू आएगी और आंसर बहुत बड़ा आएगा जबकि छोटा आंसर दिया हुआ है। तो देखो ये कितना हो गया 90, इसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड 25। नाउ 25 हो गया मीटर पर सेकंड में। टाइम टेकन टू क्रॉस 137 प्लस 163/25, दिस इज 300/25 और 12 सेकंड। आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two trains 150 and 120 meter long respectively moving from opposite direction cross each other in 10 seconds. देखो यार 150 plus 120/10, this is what speed. Now speed of first is 43.2, then let speed of second be x and then we will multiply this by 5/18. So this is 27 upon 10 into 18/5 is equal 43.2 plus x. देखो मैंने क्या किया, यहां से जो x आएगा वो सीधा मेरा किलोमीटर पर आर आएगा, ठीक है ना, ये जीरो कैंसिल हो गया, तो दिस इज 27। अच्छा, अब इसको हम ऐसा कर लेते हैं, एक्चुअली जो हमारे पास 43.2 है वो भी 9 का मल्टीपल है ना। देखो आंसर मैच कराने का तरीका देखो आप,
ये वैल्यू 9 का मल्टीपल है, दिस इज ऑल्सो, तो हमारा आंसर होगा x 27 इंटू 18 माइनस 43.2 इज इक्वल x। ये 9 का मल्टीपल, ये भी 9 का मल्टीपल, सो आंसर इज मल्टीपल ऑफ 9, ओनली पॉसिबल आंसर इज ए। अब आप सॉल्व कर लो, आंसर पूरा यही आएगा। अपॉन में 5 भी था लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर इज ए ऑप्शन। टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एंड स्टेशन बी and travel toward each other at a speed of 16 miles per hour and 21 miles per hour. At the time of their meeting, the second train has traveled 60 miles more than the first. Okay. देखो यार, A से B तक चलते हैं. The first train moving with the velocity 16 miles per hour and this 21 miles per hour. अच्छा, the second train, जब वो मिलते हैं तो second train, let it covers x, it will cover x plus 60 miles. तो देखो सेम रूल होगा. Their ratio of their speed 16 upon 21 is equal ratio of their distance covered. So this is 16x plus 960 is equal 21x. So 5x is equal 960. X would be 5 1 ja 5 and 46, 5 9 ja and 2. 192 is x. Okay. So distance total नहीं होगी 2x plus 60. So 2 into 192 plus 60. अच्छा, अब एक चीज नोटिस करो, देखो यहां पर 2 2 जो 4, 4 प्लस 0 4 आएगा, आखिरी में 4 केवल एक ऑप्शन में ए, ठीक है, आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू ट्रेन्स 108 मीटर एंड 112 मीटर इन लेंथ आर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर ऑन द पैरेलल लाइंस एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड 54 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर? देखो यार, ट्रेन की लेंथ है 108 प्लस 112, टाइम टेकन और चल रही है टुवर्ड्स ईच, मतलब अपोजिट चल रही है, तो 45 प्लस 54 और कन्वर्ट कर लो इसको किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो दिस इज 220 इंटू 18 अपॉन 90 इंटू 5, 18 5 जा, दिस इज 99, तो दिस इज 9 2 जा और 9 11 जा, 11 20 जा, 5 4 जा, 4 2 जा 8, आंसर इज 8 सेकेंड। A man standing on a platform finds that the train takes 3 seconds to pass him and another train of the same length moving in the opposite direction takes 4 seconds. The time taken by the train to pass. तो देखो simple logic, 2 T1 T2 upon T1 plus T2. Now 2 into 4 into 3 upon 4 plus 3 और this is 24 by 7. तो आंसर में अपॉन में 7 आना, सब में 7 दिया हुआ है, 7 3 जा 3 होल 3 by 7. B option. Okay, next question. Two trains each of length 125 meters are running in a parallel tracks in opposite direction. One train is running at a speed of 65 and they cross each other in 66 seconds. देखो दोनों की लेंथ 125 है, तो स्पीड 65 प्लस x, मान लेते हैं सेकंड की स्पीड x है, 5 by 18 किया इज इक्वल टोटल लेंथ 125 125 250 अपॉन 6। अच्छा, अब देखो 250 अपॉन टाइम कितना लगता है, 6 सेकेंड, तो देखो 6 3 जा 550 जा, तो 65 प्लस एक्स इज इक्वल 150, एक्स वुड बी, अब ये इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा 85, आंसर इज बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 84 किलोमीटर पर आवर passes a man walking in opposite direction at the speed of 6 किलोमीटर पर आवर in 4 seconds. Okay, what is the length? तो length of the train is equal speed which is 84 opposite direction चल रहा है ना 6 and 5 by 18 in time 4 second. So this is 90 into 5 into 4 upon 18, 18 5 ja 100. Length of the train is 100 meter. A train running at 7 by 11 of its own speed reaches a place in 22 hours. How much time could be saved if the train would run at its own speed? देखो यार, माना स्पीड x से टाइम t लगता है और 7 by 11 से उसको लगता है 7 by 11 ऑफ x लगता है उसको 22 आवर्स, तो x कैंसिल हो गया, 11 2 जा, t would be 14 hours. Now if he travel with his own speed it will take 14 hours और पहले लिया था उसने 22 hours, तो कितना सेव हो गया 8 hours. आंसर इज सी ऑप्शन, ठीक है ना। सेविंग की बात की थी ना हमको, कितना सेव हुआ, 14 था, अब उसको लग रहा है नहीं 22 था 14 लग रहा था, 8 आवर सेव हो गया उसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A man with 3/5 of his usual speed reaches the destination 2/5 hour late. देखो मान लेते हैं उसकी स्पीड S1 T1 है, अब उसने टाइम ले लिया 3/5 S1 और वो अपना डेस्टिनेशन पे
2.5 आवर लेट हो गया, S1 कैंसिल हो गया, 5t इज इक्वल 3t प्लस, अच्छा ये हो गया कितना 7.5, अच्छा ये हो गया 2t इज इक्वल 7.5, t इज इक्वल 15/4, तो 3 होल 3/4, ओके। सो आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car traveling with 5/7 of its usual speed cover 42 km in 1 hour 40 minute 48 second। अच्छा देखो 5/7 ऑफ इज यूजुअल स्पीड कवर 42 किलोमीटर। अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि जो टाइम दिया है 1 आवर है प्लस 40/60 प्लस 48/60 इंटू 60, दिस इज व्हाट कंप्लीट। देखो स्पीड हो गई 5/7 ऑफ इज यूजुअल स्पीड और 42 उसका एक्चुअल टाइम था, एक्चुअल डिस्टेंस थी, है ना, और ये मैंने किलोमीटर पर आवर को, इसको आर बना लिया पूरे को। बस इंपॉर्टेंट क्या था, कैसे हम इसको चीजों को मैनेज करेंगे। अच्छा इसको ऐसे 5/7x कर लो और ये इधर ले आओ, तो देखो ये 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2/1 प्लस 2/3 प्लस 12 4 जा 12 5 जा एंड 4 15 जा, तो 1/75 इज इक्वल 42, ठीक है ना। अब x ये यहां पे कितना एलसीएम आ जाएगा, 75 एलसीएम आ जाएगा, 75 प्लस 50 प्लस 1 इज इक्वल 42 एंड दिस इज 5/7, सो x कितना हो जाएगा 42 इंटू 75 इंटू 7 अपॉन, अब ये कितना हो गया, दिस इज 126 इंटू 5। अच्छा अब देखो ये 3 टाइम जाएगा इससे एंड 15 5 जा, आंसर इज 35, आंसर इज बी ऑप्शन, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसमें कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बस वो मिस ना हो जाए आपसे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, 3/4 ऑफ यूजुअल सर्टेन डिस्टेंस इन 2 आवर मोर देन द, देखो मान लेते हैं यूजुअल स्पीड x थी, टाइम लगता है t, अब लगता है इसको 2 आवर्स एक्स्ट्रा। नाउ x कैंसिल हुआ, 3t प्लस 6 इज इक्वल 4t, तो t इज इक्वल 6 आवर्स, आंसर इज सी ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई वॉकिंग 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ मैन रीचेज हिज ऑफिस 20 मिनट लेटर, तो x अगर यूजुअल स्पीड यूजुअल टाइम t, 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड ही इज लेट बाई 20 मिनट, x कैंसिल हुआ, 4t इज इक्वल 3t प्लस 6t, तो t इज इक्वल 60, आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड a man is 1.5 hour late his usual time, okay, तो देखो माना x टाइम t स्पीड x और अब ये 3/4, नो 3/4x और ये लेट होता है कितना 1.5 आवर्स, तो देखो x कैंसिल हो गया, 4t इज इक्वल 3t प्लस 4.5, तो टाइम इज इक्वल 4.5 आवर्स, usual time is A option. Okay, next question. Walking at 6/7 of his usual speed, a man is late by t. अब देखो इतने क्वेश्चन कर चुका तो डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, x कैंसिल हो गया, 6t प्लस 150 इज इक्वल 70, तो यूजुअल टाइम इज 150 मिनट और 2 hours 30 मिनट, आंसर इज ए ऑप्शन।